مولانا عبدالغفار منصور بھائی الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا، تو بھائی سارے دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ مختصر اور مدلل ان کا خطاب ہوگا، تو تشریف لاتے ہیں مولانا عبدالغفار منصور بھائی آئیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف دیے ان کا تذکرہ ہے اس آیت کریمہ میں، کہ آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ماہی بنا کے بھیجا ہے کہ کائنات کا رب میرے ذریعے دنیا کے کفر کو مٹا دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حاشر بنایا ہے کہ میرے پیچھے ساری دنیا کو کائنات کا رب جمع کرے گا۔ بھائی یہ خاموشی اختیار کریں، قاری صاحب جنہوں نے جانا ان کو ذرا جانے دیں، اپنی اپنی جوتی وہ پہن کے جائیں، باقی جو ہے نا بھائی بٹھائیں ان کو۔ فرمایا مجھے حاشر بنا کے بھیجا گیا ہے کہ میرے پیچھے کائنات کا رب ساری دنیا کو جمع کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں عاقب بن کے آیا ہوں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو یہ شرف ملا کہ جامع کلمات آپ کو عطا کیے گئے۔ آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ ایک مہینے کی مسافت دور ہوتے تھے، دشمن پر آپ کا رعب ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ پہلے رسول آئے، کوئی کسی قوم کی طرف آیا، کوئی کسی قبیلے کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا، کائنات کے رب نے مجھے قوم قبیلے کی طرف نہیں بھیجا بلکہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں روز قیامت میرے لیے یہ شرف ہوگا کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ شرف ہے کہ قیامت کے دن لواء الحمد، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور ساری کائنات اس جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میرا یہ شرف ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف کہ جس کی آپ کے ساتھ نسبت ہوئی وہ بھی شرف پاتا چلا گیا، جس شہر کی آپ سے نسبت ہوئی وہ شہروں سے اعلیٰ ہو گیا، جس پتھر کی آپ سے نسبت ہوئی وہ پتھروں سے اعلیٰ ہو گیا، جس کتاب کی آپ کے ساتھ نسبت ہوئی وہ کتابوں سے اعلیٰ ہو گئی، اور جس درخت کے تنے کی آپ کے ساتھ نسبت ہوئی وہ باقی تنوں سے اعلیٰ ہو گیا، اور جس امت کی آپ کے ساتھ نسبت ہوئی وہ امتوں سے اعلیٰ ہو گیا، اور وہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنی اعلیٰ ہے امت! نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں نے بھی مزدوری کی ہے، عیسائیوں نے بھی مزدوری کی ہے، مسلمانوں بھی مزدوری کی ہے،
कायनात के रब ने यहूदियों को भी मजदूरी दी, ईसाइयों को भी मजदूरी दी। जब मुसलमानों की मजदूरी की बारी आई तो कायनात के रब ने इनकी मजदूरी को डबल कर दिया। यहूदियों और ईसाइयों ने कहा, कायनात के रब हमने भी मजदूरी की। कायनात के रब ने कहा, तुम्हें पूरी मजदूरी मिली कि नहीं मिली? वो कहते हैं, मालिक पूरी मजदूरी मिली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, ये मेरा फजल है, मैं जिसको चाहता हूं अता करता हूं। ये फजल कायनात के रब ने इस उम्मत को अता कर दिया है। उम्मती इतने शरफ वाला, लेकिन वो उम्मती शरफ पाएगा जो हकीकी उम्मती है, अतात करने वाला। अगर अतात नहीं तो फिर तो कुछ भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी कहता है कि इब्तिदा में आपने ये नबूवत का जो मंजर देखा वो कैसा था? आप फरमाते हैं, 2 फरिश्ते मेरे पास आए और उन 2 फरिश्तों ने आके, एक ने कहा दूसरे पलड़े में एक आदमी को रखो। वो आदमी रखा गया, मेरा पलड़ा भारी रहा। फिर 10 बंदे रखे गए, मेरा पलड़ा भारी रहा। फिर 100 बंदा रखा गया, मेरा पलड़ा भारी रहा। फिर 1000 बंदा रखा गया, मेरा पलड़ा फिर भी भारी रहा। फिर दूसरे फरिश्ते ने कहा, अगर सारी उम्मत को जमा कर दे फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा भारी रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये शरफ लेके आए हैं, ये अजमत रिफतें लेके आए हैं। अजीज भाइयों, आज मैंने आपके सामने कुछ दिल खराश बात रखनी है कि दुनिया के काफिर, उन्हें इस चीज की तकलीफ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मे नबूवत का ताज पहन के आए और अंबिया के सरदार बन के आए। काफिरों को तकलीफ है। आपने खबर सुनी है, फ्रांस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां, खाके बनाने शुरू किए उन्होंने। हुकूमत ने सरपरस्ती की है और बयान क्या दिए जा रहे हैं जी, ये हमारे यहाँ आज़ादी है, सहाफत की आज़ादी है, इस आज़ादी की वजह से ये काम हो रहा है। हम कहते हैं, सुनो, अगर तुम्हारी सहाफत आज़ाद है, तुम्हारे सहाफ़ी आज़ाद हैं, तुम्हारे कार्टून बनाने वाले आज़ाद हैं, तो मुसलमानों की तलवारें भी आज़ाद हैं, फिर इनसे बच कोई नहीं सकता। हमें तो फिर आज़ादी का फिर रंग आता है, बदले चुकाने आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने हमें यही समझाया है। काब बिन अशरफ यहूदी था, गुस्ताखी करता था। आपने कहा कौन खबर लेगा उसकी? मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, उसके किले तक पहुंचे, उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसके सर को मजबूती के साथ पकड़ा और अपने साथी को इशारा किया कि अपनी तलवार के साथ इसकी गर्दन को काट दे के ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। इलाज तो हमें भी आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफे यहूदी जब गुस्ताखियों पर उतर आया तो आपने उस वक्त सहाबा को भेजा। अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, अपने बाकी साथियों को पीछे खड़ा किया, खुद आगे गए, किले में जाके छुप गए। जब उसकी मजलिस खत्म हुई तो उसके कमरे तक पहुंच गए। रात का अंधेरा था, उस रात के अंधेरे में उस पर वार किया। आवाज सही न समझ आ सकी, उसने आवाज दी, फिर आवाज पहचान के उस आवाज पर वार करके उसको चीर दिया कि ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। आज हम पूरी दुनिया के लिए ये ऐलान करते हैं, हमारे बच्चे कटे तो हमें वो गम नहीं, हमारे लाशें तड़पे तो हमें वो गम नहीं, हमारा खून बहे तो हमें वो गम नहीं। आज जो उम्मत मुस्लिमा पर गम टूट पड़ा है कि दुनिया के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में उतर आए और उनके दौरे में आ रहे हैं। जब उनकी बात हो तो बड़े कानून बनते हैं, जब उनकी बात हो तो बड़े कानून बनते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात आए तो फिर उनके कानून नहीं बनते। अजीज भाइयों, आज हमने एक अज़म और अहद ये करना है कि ये काफिर गुस्ताखियों पे उतर आए हैं, हमने इंशाअल्लाह एक एक से बदला लेना है। इंशाअल्लाह
दूसरा अज़म हमने ये करना है कि अगर वो गुस्ताखियों को उतर आए हैं तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी सीरत को अपनाने वाले बन जाए, क्योंकि उम्मती तो होता ही वही है जो सीरत को अपनाने वाला बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई, आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी मगर वो शख्स जिसने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पूछते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स कौन है जो जन्नत जाने से इनकार करता है? आपने फरमाया मन अतानी दाखिलल जन्नह व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी अताअत कर ली वो जन्नतों का वारिस बन गया, जिसने नाफरमानी की उसने जन्नत जाने से इनकार कर दिया। अजीज भाइयों, कामयाबी यह है कि हम अताअत करने वाले बन जाएं और आपकी मुखालफत से बचने वाले बन जाएं। कामयाबी इसके लिए है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो फरिश्ते आए, आप सोए हुए थे। एक फरिश्ते ने दूसरे को कहा कि मिसाल बयान करो, दूसरे फरिश्ते ने कहा ये तो सोए हुए हैं। उसने कहा मिसाल बयान करो, आंखें इनकी सोती हैं, दिल इनका जागता है। कहा मिसाल बयान करो, आंखें इनकी सोती हैं, दिल इनका जागता है। मिसाल फरिश्ते ने शुरू कर दी। कहा मिसाल यह है, एक घर बनाने वाले ने घर बनाया है और उसमें उसने खाना पकाया है, फिर उसने बुलाने वाले को भेजा है, जो बुलाने वाले की आवाज पर लब्बैक कह के आ गया वो खाना खा गया, जो नहीं आया वो खाने से महरूम हो गया। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि इसकी जरा तफसील तो बयान कर दो। उसने कहा तफसील ये है कि घर बनाने वाला रब्बुल आलमीन है, जो घर बनाया है वो जन्नतों का घर है, और जिन्हें बुलाने के लिए भेजा है वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इनके बुलाने पर आ गया वो जन्नतों का वारिस बन गया, और जो इनके बुलाने पर नहीं आया वो जन्नतों से महरूम कर दिया गया। अजीज भाइयों, हम उम्मती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और हकीकी मोहब्बत तब होती है जब उम्मती अताअत करने वाला, और अगर अताअत ना हो तो फिर दावे फायदा कुछ नहीं देते। सहाबा की मोहब्बत का अंदाज क्या है? एक सहाबी परेशान थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि परेशान क्यों है। आपने कहा बताओ परेशानी काहे की है, क्यों परेशान है? कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले परेशान होता था, आपका चेहरा देखता मेरी परेशानी दूर हो जाती। आज परेशानी कुछ और है। आप जन्नतों में चले जाएंगे, दर्जे बड़े आला होंगे। मैं जन्नत में चला गया, दर्जा बड़ा और छोटा होगा। परेशानी यह है कि आपका वहां दीदार कैसे होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश हैं। कायनात के रब ने कुरान नाज़िल कर दिया कि जो अल्लाह की अताअत करने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाला है, कायनात का रब क़यामत के दिन उसको नबियों का साथ अता करने वाला है, सिद्दीकों का साथ, शहीदों का साथ, सालिहीन का साथ, व हसुना उलाइका रफ़ीका, और यह है बेहतरीन साथ। बस सिर्फ यही गुजारिश है कि काफिर गुस्ताखियों को उतर आए हैं, हमने इंशाअल्लाह तैयारी करनी है। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के साथ मोहब्बत करके अपनी ज़िंदगी में उसको नाफज करना है। अल्लाह ताला कहने वाले को सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।